बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम 9th क्लास के कोर्स में एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है, शो दैट विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। हम शो करेंगे कि इन चारों मैट्रिक्स में कौन कौन से मैट्रिक्स हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे फॉर ए बी मल्टीप्लिकेशन। इसके लिए हमारे पास एक मेथड है कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक विच इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड कॉलम विच इज इक्वल टू बी। हमारे पास ए में नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 1 है। हम लिखेंगे 1 number of columns in A matrix which is equal to 1 and number of rows in B matrix which is equal to 1. It means that AB is conformable for multiplication. अब हम A C की बात करेंगे। लिखेंगे फॉर ए सी। दोबारा इस तरह लिखेंगे कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए मैट्रिक्स विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड कॉलम विच इज सी। हमारे पास ए में नंबर ऑफ कॉलम्स है 1। 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सी मैट्रिक्स हमारे पास है 2। It means that AC is not conformable for multiplication. अब हम लिखेंगे फॉर AD। नंबर ऑफ कॉलम्स in matrix first which is A is equal to number of rows in column in matrix second। second matrix हमारे पास है D। A में हमारे पास है number of column in A matrix which is equal to only 1 column and number of rows in D matrix which is also equal to 1। it means that AD is conformable for multiplication। B a matrix। First of all, number of columns in matrix first which is B and number of rows in matrix second which is A। हमारे पास B में नंबर ऑफ कॉलम्स है 1 and 2। 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन A मैट्रिक्स हमारे पास है 1 and 2। 2 इज इक्वल टू 2। इट मीन्स दैट BA is conformable for multiplication। अब हम लिखेंगे फॉर BC। number of columns in first matrix which is B is equal to number of rows in second column which is C। हमारे पास B में number of columns है 2। 2 is equal to C में हमारे पास number of rows भी 2 है। 2 is equal to 2। it means that BC is conformable for multiplication। अब हम लिखेंगे फॉर BD। number of columns in matrix first which is B is equal to number of rows
in second column which is matrix D. So हमारे पास B में number of columns है only 2. So 2 is equal to number of rows in D matrix which is only 1. So 2 doesn't equal to 1. It means that BD is not conformable for multiplication. अब हम लिखेंगे फॉर मैट्रिक्स सी ए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ कॉलम्स in matrix B is equal to number in matrix C, first matrix C, and is equal to number of rows in matrix second which is matrix A. So number of columns in C matrix हमारे पास है 1 and 2. So 2 is equal to number of rows in A matrix हमारे पास है only 2. So 2 is equal to 2. It means that CA is conformable for multiplication. अब हम लिखेंगे for CB matrix. So number of columns in matrix first which is C is equal to number of rows in column in matrix second which is matrix B. So हमारे पास number of columns in C matrix है 1 and 2. So 2 is equal to and number of rows हमारे पास B matrix में है only 1 which is doesn't equal to each other. It means that CB is not conformable for multiplication. अब हम लिखेंगे फॉर सी डी. सो नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स विच इज मैट्रिक्स सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स विच इज मैट्रिक्स डी. हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स इन सी मैट्रिक्स है ओनली 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन डी मैट्रिक्स हमारे पास है ओनली 1 which is doesn't equal to each other. It means that CD is not conformable for multiplication. अब हम लिखेंगे for matrix DA. So number of columns in matrix first which is matrix D is equal to number of rows in matrix second which is matrix A. So हमारे पास D में number of columns है 1, 2 and 3. So 3 is equal to number of rows in A matrix हमारे पास है 2. So 3 doesn't equal to 2. It means that DA is not conformable for multiplication. अब हम लिखेंगे for DB. So number of columns in matrix D is equal to number of rows in matrix B. हमारे पास number of columns in matrix D है 3 and number of rows in matrix B है only 1 which is doesn't equal to each other. It means that DB is not conformable for multiplication. अब लास्ट है हमारे पास for DC. So number of columns in matrix D is equal to number of rows in matrix C. So हमारे पास number of columns D matrix में है only 3
and C matrix में number of rows only 2 and 3 doesn't equal to 2, it means that DC is not conformable for multiplication. So those matrices which are conformable for multiplication are, हमारे पास जो मैट्रिक्स कंफर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए, सो वो हमारे पास है ए बी, ए डी, बी ए, सी ए एंड बी सी। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है इफ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड बी इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। सो फर्स्ट पार्ट है इज इट पॉसिबल टू फाइंड ए बी, हम ये मालूम करेंगे कि ए बी को हम फाइंड कर सकते हैं। दूसरा पार्ट है हमारे पास इज इट पॉसिबल टू फाइंड बी ए, हम मालूम करेंगे कि हम बी ए मैट्रिक्स को फाइंड कर सकते हैं। थर्ड नंबर है हमारे पास फाइंड द पॉसिबल प्रोडक्ट आर प्रोडक्ट्स, हम पॉसिबल प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स को फाइंड करेंगे, जो भी इन दोनों में पॉसिबल हो उसको हम फाइंड करेंगे। सो फर्स्ट नंबर पार्ट हमारे पास है इज इट पॉसिबल टू फाइंड ए बी। सो हम लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स in matrix first which is A is equal to number of rows in matrix second which is matrix B। so हमारे पास A में number of columns की तादाद है 2, so 2 is equal to number of rows हमारे पास B में है 1 and 2, so 2 is equal to 2, it means that AB is possible to find। सेकेंड नंबर पार्ट हमारे पास है इज इट पॉसिबल टू फाइंड बी ए मैट्रिक्स। इसके लिए भी हम ये वाला मेथड यूज करेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स फर्स्ट विच इज बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स सेकेंड विच इज मैट्रिक्स ए। सो नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स बी हमारे पास है ओनली 1 एंड नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स ए हमारे पास है 1 and 2। सो 1 डजंट इक्वल टू 2, इट मींस दैट बी ए इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड। अब थर्ड नंबर पार्ट हमारे पास है फाइंड the possible product or products। so हमारे पास only A B possible है for multiplication, so हम इसको find करेंगे। A मैट्रिक्स हमारे पास है -1 0 2 1, B मैट्रिक्स हमारे पास है 3 and -2। so first of all हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सो -1 मल्टीप्लाइड बाय 3, दरमियान में प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय -2। अब हम नीचे आएंगे, यहाँ पर भी नीचे सेकेंड रो को हम इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय -2। सो ए बी इज इक्वल टू माइनस इंटू प्लस माइनस 1 into 3 which is equal to 3 plus into minus minus 0 2s are 0, 2 3s are 6 plus into minus minus 1 2s are 2। so हमारे पास ए बी मैट्रिक्स होगा -3 minus 0 which is equal to -3, 6 minus 2 which is equal to 4। now this is the required matrix of A B। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है गिवन दैट
A is equal to this matrix, B is equal to this matrix, C is equal to this matrix and D is equal to this matrix. Find पार्ट नंबर फर्स्ट हमारे पास है ए बी मैट्रिक्स को फाइंड करेंगे एंड सी डी मैट्रिक्स को फाइंड करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट नंबर फर्स्ट हम करेंगे ए बी. सोल्यूशन में दोबारा ए बी लिखेंगे. यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल ए का मैट्रिक्स देन बी का मैट्रिक्स. ए का मैट्रिक्स हमारे पास है 4 1 3 1. सो 4 1 3 1. बी का मैट्रिक्स हमारे पास है 1 -1 एंड -3 4. अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे. सो ए बी इज इक्वल टू फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स. सो 4 मल्टीप्लाइड बाय 1, फिर दरमियान में प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय -3, 1 मल्टीप्लाइड बाय -3. अब फर्स्ट रो विथ सेकेंड कॉलम. सो 4 मल्टीप्लाइड बाय -1, फिर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 4. अब हम नीचे सेकेंड कॉलम में आएंगे, सेकेंड रो में आएंगे. सो सेकेंड रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स. सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, फिर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय -3. अब हम नेक्स्ट कॉलम में जाएंगे. सो फर्स्ट सेकेंड रो विथ सेकेंड कॉलम. सो 3 मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 4. सो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होगा ए बी इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 विच इज इक्वल टू 4, प्लस इंटू माइनस, माइनस 1 3 are 3, प्लस इंटू माइनस, माइनस 4 1 are 4, फिर प्लस 1 4 are 4, 3 1 are 3, प्लस इंटू माइनस, माइनस 1 3 are 3, प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 1 are 3 and plus 1 4 are 4. So AB is equal to 4 minus 3 which is equal to 1, minus 4 plus 4 which is equal to 0, 3 minus 3 which is equal to 0 and minus 3 plus 4 which is equal to 1. So this is the required matrix of AB. पार्ट नंबर सेकंड हमारे पास है CD. सो CD हम लिखेंगे और सॉल्यूशन में दोबारा CD लिखेंगे और इसके मैट्रिक्स भी लिखेंगे. सी मैट्रिक्स हमारे पास है 3 4 1 2. डी मैट्रिक्स हमारे पास है 1 -2 -1/2 एंड 2/3. सो CD is equal to first row with first column. So 3 multiplied by 1, फिर plus 4 multiplied by minus 1/2. फिर first row with second column. So 3 multiplied by -2, फिर plus 4 multiplied by 2/3. अब हम नीचे रो में आएंगे. सो सेकेंड रो विद द फर्स्ट कॉलम. सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय -1/2. अब हम सेकेंड रो विद सेकेंड कॉलम. सो 1 मल्टीप्लाइड बाय -2, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2/3. सो CD मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3 1s are 3, प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 1s are and 2 2s are. तो यहाँ पर रहेगा 2, प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 2s are 6, प्लस 4 2s are 8, 8/3. 1 1s are 1, प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 2 कैंसिल, यहाँ पर रहेगा 1, प्लस इंटू माइनस, माइनस 1 2s are 2, प्लस 2 2s are 4, so 4/3. तो CD is equal to, हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे. सो यहाँ पर रफ वर्क में एलसीएम लेंगे. -6 प्लस 8/3. सो यहाँ पर एलसीएम हमारे पास होगा 3.
3 divided by 1 which is equal to 3, 3 multiplied by minus 6 which is equal to minus 18, and plus 3 divided by 3 which is equal to 1, 1 into 8 which is equal to 8. So minus 18 plus 8 by 3 which is equal to minus 10 by 3. So 3 minus 2 which is equal to 1, इसकी जगह पर minus 10 by 3 लगाएंगे, फिर 1 minus 1 which is equal to 0. अब हम इसका भी एलसीएम लेंगे, सो minus 2 plus 4 by 3, एलसीएम हमारे पास होगा 3, 3 divided by 1 which is equal to 3, 3 into minus 2 which is equal to minus 6, plus 3 divided by 3 which is equal to 1, 1 into 4 which is equal to 4, और minus 6 plus 4 which is equal to minus 2 by 3. तो इसकी जगह पर हम minus 2 by 3 लिखेंगे, which is the required matrix of CD. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 सॉल्व करेंगे. खुदा हाफिज़.